Assalamualaikum and welcome to another round of our exciting workshop on resume writing. In this session, we have partnered with the students of Sardar Bahadur Khan Women University and is brought to you all by Circle Women Pakistan. Circle Women's mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Grow, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Frederick Milman Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on resume writing will be conducted by Sikandar Bzangel, who is an external engagements manager at the Dow Hercules Corporation. He engages with the global thought leadership, multilateral organizations, and international stakeholders to learn, contribute, and bring back learnings to the group. He's also the curator of Global Shapers Karachi, the youth initiative of the World Economic Forum, and the co-founder of Balochistan Youth Action Committee. Without further ado, I'd like to welcome Mr. Sikandar to take the session forward from here. Thank you. Thank you very much to the team of Circle for arranging it. I can't seem to see the screen where the students are. Is there a screen there? So I just received a call from the facilitator from the university and they're having some connectivity issues. I told them we'll start and meanwhile they can join. So if we can wait for another let's say 3 to 5 minutes, Okay. that'll be great. Sound, Yeah, because sounds that's okay. like As long, for okay. Okay, as great. long I'll as it's let them know. Thank interactive. you. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिस्मिल्लाह भाई, आ रही है। जस्ट होल्ड ऑन, आवाज तक मेरे आते हैं। हाँ, we are connected. स्पीकर कनेक्टेड है? स्पीकर कनेक्टेड नहीं, इसमें हेडफोन लगा है या हमको ऑप्शन है? आप हेडफोन ना करो, स्पीकर से कनेक्ट करो। बिजन जो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिस्मिल्लाह भाई, आ रही है बिल्कुल। That's great. लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी गूंज भी रही है, एको कर रही है। आवाज गूंज रही है सर? जी आई थिंक अभी ठीक है। Now it looks fine. फिलहाल तो सही है। मैं सिर्फ इसका जो कैमरे का मोड है थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेता हूँ बच्चियों की तरफ जो बैठे हुए, आपको हम दिखा देते हैं। जी शकील साहब, now can you see the students? जी जी बिल्कुल, आई कैन सी द स्टूडेंट्स। We are ready, and with me my faculty is sitting also here. I'm Iftikhar as working here as a campus director, and more than 50 students they are sitting here. So with the name of Allah Pak, we can start the session. Thank you very much, Bismillah, for arranging this. Thank you, Fahad sir. Umam, do you want to give an introduction about Circle, the program, quickly? The team of Circle, do you want to give a very quick introduction about your program, or should I start? Yes, आप इसमें start कर सकते हैं बिजन जो सर। चले ठीक है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है, स्टूडेंट्स को? चलो वेरी गुड। आज का जो सेशन है ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एज वेल एज समवन जो करियर में 4-5 साल मैंने काम किया है। रेज्यूमी आपका पहला इंप्रेशन है जो आप सबमिट करते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को। अब अच्छा, मेरी जैसी भी आवाज क्लियर ना हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं कॉन्स्टेंटली बोलता ना जाऊं, मैं स्टॉप कर लूं वहां पे, ठीक है? फिलहाल अब तक क्लियर है मेरी आवाज? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? Yeah, it's pretty clear to me. I don't know कि look तक जा रही है या नहीं। Yeah, that's why I keep asking them if it's clear. बिस्मिल्लाह भाई, कोई माइक के पास आप लोग बैठ जाएं तो ताकि मुझे बताते रहे मेरी आवाज जब ड्रॉप हो जाए।
स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? एसपीके वाले स्टूडेंट्स को? ओके ग्रेट। आवाज नहीं आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं कॉन्स्टेंटली आगे ना जाऊं ना। तो रेज्यूमे जो है दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन दैट गोज टू द एम्प्लॉयर, दैट गोज टू एनीवन। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में फॉर अ लेक्चरर अप्लाई करते हैं, आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, सबसे जो पहली चीज है वो आपकी जाएगी रेज्यूमे। और रेज्यूमे के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे जो बेसिक रूल्स हैं वो आप कॉन्स्टेंटली सीखते जाते हैं, रिवाइव करते जाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि आइडियल रेज्यूमे कितने पेज की होनी चाहिए स्टूडेंट्स में से? किसी ने कहा 1 2 3। अच्छा फर्ज करें आपने 4 साल काम किया है, आपकी 4 साल की एक्सपीरियंस है। 4 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है ना एक्सपीरियंस के लिए। इस 4 साल के एक्सपीरियंस को आप कितने पेजेस में आपको लगता है आप समराइज कर सकेंगी? 2 3 4। मैंने बहुत सारे लोग हायर किए हैं फॉर माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर किसी की रेज्यूमे 3 पेज से ऊपर है, आई विल नॉट लुक एट दैट रेज्यूमे। अगर उन्होंने 10 साल भी काम किया होगा, अगर 3 पेज से ऊपर की रेज्यूमे है, मैं वो देखूंगा ही नहीं, मैं उसको साइड पे कर लूंगा। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड व्हाट आई एम डूइंग, माय नेम इज सिकंदर बिजंजो। मैं खुद एक इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं यहाँ कराची में दाऊद हरक्यूलिस, दाऊद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ उनकी एक्सटर्नल एंगेजमेंट देख रहा होता हूँ। उनके जितने भी बाहर के कॉन्टेक्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, अटलांटिक काउंसिल के साथ, या जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मेरी होती है फॉर द होल ग्रुप। दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के पुराने तरीन बिजनेस में से एक है। 103 साल हो गए बिजनेस को। एंग्रो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अस। बहुत सारे और भी इदारे हैं। हब को हमारे पार्ट हुआ करता था एक जमाने में। वी सोल्ड इट 2 years ago। तो ये मेरा करंट रोल है। अब हाउ डिड someone how do someone apply to these organizations? आपका पहला इंप्रेशन क्या? So this all comes down to resume। और resume, there's no, I wouldn't say there's a wrong format, लेकिन जो एक पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा कि रेज्यूमे आपकी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। दैट्स द वेरी बेसिक, आपको वो करना चाहिए। मेक श्योर के जैसे फर्ज करें आपने बहुत सारे आपने काम किए हैं, आपने यूनिवर्सिटी में वॉलंटियर किया है, अपने डिबेट कंपटीशन में हिस्से लिए हैं। डू यू थिंक दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे? आपको लगता है कि ये आपके रेज्यूमे के पार्ट होना चाहिए? नो? यस, दिस ऑफ कोर्स दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे। लेकिन दैट डिपेंड्स कि कौन सी चीज रेलेवेंट है और किस जॉब के लिए रेलेवेंट है। फर्ज करें मेरा जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है वो है 8 साल का। मैंने वॉलंटियर किया है मलेशिया में 3 साल, मैंने डेनमार्क में वॉलंटियर किया है, यूके में वॉलंटियर किया है, और पाकिस्तान में वॉलंटियर किया है। 4 मुल्कों में मैंने वॉलंटियर किया है फॉर लास्ट 8 years मेरे प्रोफेशनल करियर से हटके। मैंने इस सब चीजों को मैंने एक लाइन में अपने सबरी उसमें रेज्यूमे में डाला हुआ है कि वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऑफ 8 years फ्रॉम मलेशिया, डेनमार्क, यूके एंड पाकिस्तान। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस स्टेज पे हूं अभी फिलहाल जहां मेरा जो प्रोफेशनल मेरा काम है वो हाईलाइट होना चाहिए, वॉलंटियर काम कम हाईलाइट होना चाहिए। आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए चाहिए कि वॉलंटियर काम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट होगा। क्योंकि अगर मैं खुद हायर कर रहा हूँ, आप में से 2 लड़कियां अप्लाई कर रही हैं, एक का डिस्टिंक्शन आया हुआ है, A* आया हुआ है, लेकिन सिर्फ उसने पढ़ाई की है, और दूसरी लड़की है उसका B या C है, लेकिन उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। मैं ऑनेस्टली आई वुड प्रेफर द सेकंड वन, जिन्होंने बैलेंस किया हुआ है अपनी लाइफ को, जिसमें वॉलंटियर भी है, कम्युनिटी सर्विस भी है, और पढ़ाई भी साथ साथ किया है। सो आई विल ऑलवेज लुक फॉर द कैंडिडेट्स हु कैन बैलेंस। सो मेक श्योर कि जब आप अप्लाई करें, आपकी रेज्यूमे में एक सेक्शन हो जो बता सके कि आपने पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया है। फर्ज करें आप में से किसी ने कोई इंटर्नशिप की है, गुड। आपने किसी ने कोई फ्रीलांसिंग का कोई काम किया है, वो भी डाल दें।
आपने कोई क्लीनिंग ड्राइव, क्वेटा में क्लीनिंग ड्राइव में हिस्सा लिया है, वो डाल दें। आपने कहीं वॉलंटियर किया है, वो डाल दें। कुछ भी किया है आपने अदर देन योर स्टडीज, मेक श्योर दैट इज हाईलाइटेड इन योर रेज्यूमे। मैंने कोई आज के सेशन के लिए मैंने आज सच कोई लेक्चर स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपना मास्टर्स किया था यूके से, तो मैंने यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे, मेरा मास्टर्स खत्म नहीं हुआ था, मेरे 2-3 महीने रहते थे, मैंने वहीं से बैठ के आई स्टार्टेड अप्लाइंग। क्योंकि जब आप वक्त से पहले अप्लाई कर रहे होते हैं, रेज्यूमे भेज रहे होते हैं लोगों को ये, वो जो एम्प्लॉयर है या रिक्रूटर है, उसको ये फील होता है चलो यार ये लड़की, शी इज थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, शी इज डूइंग समथिंग मोर देन द नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये बड़ी स्क्रीन है जहां मैं दिख रहा हूँ, मैं अपनी रेज्यूमे यहाँ पे दिखा सकता हूँ आप लोगों को? या ये लैपटॉप रखा हुआ आपके सामने, या बड़ी स्क्रीन है, क्या है ये? लैपटॉप है या बड़ी स्क्रीन है? बड़ी स्क्रीन है? सर बड़ी स्क्रीन। जी सर। ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी एक पुरानी रेज्यूमे दिखाता हूँ, ठीक है, जो बहुत मैंने पहले बनाई थी। आपको ये रेज्यूमे दिख रही है मेरी? ठीक है। रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपका नाम आता है, आपका एड्रेस आता है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आते हैं। बहुत सारे लोग अपनी तस्वीर भी लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी एज भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जेंडर भी लिखते हैं। मेरे हिसाब से उनकी जरूरत नहीं है। आप ना ही अपनी तस्वीर लगाइए, ना ही अपना एज लिखें, ना ही अपना जेंडर लिखें। इट डज नॉट मैटर। स्पेशली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन से इदारे हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता ये एज सच, कि आपकी एज कितनी है या आपकी तस्वीर क्या आप लगाई या नहीं लगाई। यूजली इट डज नॉट मैटर। उसके बाद मेरा जो सेक्शन है वो है एजुकेशन, क्योंकि दिस इज समथिंग आई वांट टू हाईलाइट, यार मैंने कहाँ से पढ़ा है। ठीक है, मुझे ये हाईलाइट करना है। आपके लिए यही फॉर्मेट होगा कि आपका जो नाम का सेक्शन है उसके नीचे आपकी एजुकेशन आएगी, सेकंड सेक्शन आपका एजुकेशन है। क्योंकि एज अ रिक्रूटर, एज समवन हु इज हायरिंग, मेरे पास literally I have 10 seconds or even less than 10 seconds to skim through one resume और देखूं कि यार ये शॉर्टलिस्ट वाले फोल्डर साइड पे जाएगा या ये आउट, मतलब बिल्कुल गायब, इसको निकाल दो, उस साइड पे जाएगा। सो मेरे पास 2 साइड्स हैं। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी देख के शॉर्टलिस्ट आउट इस तरह कर रहा होता हूँ। ऑल द रिक्रूटर्स डू द सेम थिंग। तो आपको चाहिए कि आपके जो मेन जो चीजें हैं वो सबसे पहले हाईलाइटेड हो, ताकि जो रिक्रूटर है वो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट पे करे, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, देन इज योर एजुकेशन। तीसरा आता है आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, वॉलंटियर एंड कम्युनिटी वर्क। अब यहाँ पे आप देखें मैंने कितना डिटेल में लिखा है कि जून जुलाई से अक्टूबर तक मैंने शेल्टर होम में काम किया है। जुलाई से अक्टूबर 2012 से मैंने एक जो बच्चे हैं उनको मैंने पढ़ाया, जो अंडर प्रिविलेज रेफ्यूजी बच्चे हैं म्यांमार के या बर्मा के, मैंने उनको पढ़ाया है। फरवरी में मैंने उनको पढ़ाया है। जुलाई में मैंने वाइल्ड लाइफ उसमें रेंजर रहा हूँ। मार्च में मैं एक नॉन प्रॉफिट कैफे डेनमार्क में मैंने काम किया। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू एक्सपैंड। लाइक बहुत ज्यादा इसमें डिटेल्स एक्सट्रीम ना लिखिएगा, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 लाइन एक्सपेंड कर दें कि आपने हर चीज में क्या किया है। क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो आपका एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है वो है ही नहीं। बल्कि देखिए अब यहाँ पे मेरा लीडरशिप एक्सपीरियंस है, मेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे है भी नहीं। तो जो मेजर चंक है तो मैं इन चीजों में डालूंगा। ठीक है, ये शुरू की मेरी रेज्यूमे है। लीडरशिप में मैंने क्या डाला है, अब देखें इस तरह की चीजें ना डालें कि आपको सीवी भरनी है बस किसी भी तरह, आपको 3 पेजेस पूरे करने हैं, 4 पेजेस पूरे करने हैं। आप सिर्फ रेलेवेंट चीजें उसमें डालेंगे जो रेलेवेंट है। जैसे लीडरशिप एक्सपीरियंस में मैंने लिख दिया कि मैं वॉलंटियर प्रोग्राम का हेड ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस रहा हूँ। 1-2 लाइनें लिख दी मैंने कि इसमें मैंने किया क्या है। फिर मैंने लिख दिया कि यूनाइटेड नेशंस जो मॉडल यूएन है उसका मैं ट्रेजर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या किया है। एक्सचेंज क्लब में मैंने क्या किया है, डेनमार्क में मैंने क्या किया, मलेशिया में मैंने क्या किया।
कोशिश करें इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। जैसे यहाँ पे मैंने ज्यादा लिखा है क्योंकि दिस कैरीज मोर। अच्छा, आपकी वीडियो ऑफ हो गई। कैन यू हियर मी SBK स्टूडेंट्स? I think we just lost them, so let them reconnect. अच्छा, जी आपको अब आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स SBK, आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है स्टूडेंट्स SBK वाले? आप लोगों को आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाह भाई। अच्छा, आपका जो लैपटॉप है वो म्यूट है बिस्मिल्लाह भाई। मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोग कुछ बोल रहे हैं मुझसे। वो अनम्यूट कर दें प्लीज। आप लोगों का जो लैपटॉप है SBK स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो लैपटॉप है वो म्यूट पे है। इसको अनम्यूट करवा दीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आप लोगों को आवाज आ रही है ना? ओके, अज्यूमिंग आ रही है क्योंकि अभी आप अनम्यूट हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो सेक्शन है इसमें मैंने ज्यादा चीजें लिखी हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर सेक्शन। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि ये रेलेवेंट है। यहाँ पे मेरी जो सिचुएशन थी वो पेड थी, और बाकी जितने भी चीज थे वो अनपेड थे। तो मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखी हैं। आई मेंटेन द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, टुक द इनिशिएटिव, ये वो। फिर मैंने लिखी अदर क्वालिफिकेशंस। अब इसमें आप जरूरी नहीं है क्वालिफिकेशंस में आपका जो यूनिवर्सिटी वाले आ जाए, इसमें आप अदर चीजें भी लिख सकते हैं कि अदर डिप्लोमाज और ट्रेनिंग। जैसे ये आपकी ट्रेनिंग है, रेज्यूमे वाली ट्रेनिंग, ये आप लगा सकते हैं अपनी रेज्यूमे में कि अटेंडेड अ 2 hour सेशन ऑन रेज्यूमे राइटिंग कंडक्टेड बाय सर्कल वुमन। ये आपकी रेज्यूमे में एक लाइन आ सकती है। ठीक है, दिस शोज के आप यू आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। जब कोई रिक्रूटर के पास आपकी CV जाती है मैनेजर के पास, तो वो देखता है अच्छा चलो इन्होंने कुछ और भी चीजें वो की हैं। फिर है अदर, ये इंटरेस्ट तो नहीं है बट दीज आर अदर स्किल्स। लैंग्वेजेस हैं, बलूची, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मलय, डेनिश। सो यू राइट के कौन सी आपकी कितनी फ्लुएंट है। बलूची इज मदर टंग, उर्दू फ्लुएंट इन स्पीकिंग राइटिंग, इंग्लिश। अब मैंने हिंदी भी डाल दिया है कि हिंदी में हम स्पीकिंग इज फ्लुएंट, रीडिंग एंड राइटिंग इज नन। अब जो फर्ज करें कोई बाहर का अमेरिका में या UK में कोई किसी में कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, उसको ऐसे इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा कि उर्दू और हिंदी इज वेरी सिमिलर। सो यू कैन राइट एन एडिशनल एज वेल के स्पीकिंग। आई थिंक वी लॉस्ट देम अगेन। Are they reconnecting? Yeah, okay. ये अपना अनम्यूट कर दें बिस्मिल्लाह भाई, वहां पे इफ्तिखार भाई अनम्यूट कर दें लैपटॉप, ताकि मैं बात कर सकूं उनसे। जी, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आपकी आ रही है? चलो, थैंक यू। जी गुड। तो यहाँ पे आपकी स्किल्स आ जाती हैं एंड पे। ठीक है,
स्किल्स में आपकी कंप्यूटर स्किल्स हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर मैंने क्या लिखा है, communication skills developed through constant involvement in debating and attending many international and prestigious conferences, including Euroman 2013 Netherlands and Worldman 2014 in Belgium. अब यहाँ पे आप नोट करें कि मैंने ये नहीं बोला कि आई एम एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन है। मैंने यहाँ पे बोला कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई हैं थ्रू दिस। मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द सेंटर पॉइंट्स ऑफ एनी रेज्यूमे कि जब आप कोई बात करें ना, रेज्यूमे में कुछ लिखें, उसकी जस्टिफिकेशन दें। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वो फॉर्मूला बताता हूँ। ट्राई टू नोट दैट whenever you're writing a resume, it's called STAR। ठीक है, मैं नीचे भी लिख देता हूँ, चैट में भी लिख देता हूँ अगर आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ। इट्स कॉल्ड स्टार। स्टार है एक एक्रोनिम। स्टार का फुल फॉर्म है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, क्या है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? whenever you're writing something in your resume, think hard of a situation कि वो सिचुएशन क्या थी, उसका रिजल्ट क्या आया है। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, that is they write all the tasks and actions without the context or the situation. Do you know what I mean? कि उन्होंने टास्क लिख दिए, उन्होंने कहा कि हमने कौन से एक्शंस लिए हैं उस वक्त, लेकिन उन्होंने कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन नहीं बताया। जैसे मैं अगर दोबारा अपने रेज्यूमे पे जाऊं, शेयर स्क्रीन, if I go back on my resume, अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ नहीं बताया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग आउट ओवरसीज। मैंने यहाँ पे बताया पूरी सिचुएशन कि मैंने डिबेटिंग की है। मैंने कहाँ पे डिबेटिंग की है? मैंने यूरोप में, नेदरलैंड्स में डिबेटिंग की है, मैंने बेल्जियम में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। उससे मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो फर्दर बेहतर हो गई हैं, फर्दर स्ट्रांग होती गई हैं। तो आई एम गिविंग अ सिचुएशन एज वेल, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टू देम अबाउट एनीथिंग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिखा है मैंने joined many clubs and societies in Monash as well as Copenhagen Business School. Interaction and socializing are a big help to improve communication. अब यहाँ पे मैंने लिखा कि मैंने सोसाइटीज ज्वाइन की हैं, लेकिन मैंने उनको फर्दर बताया कि यहाँ पे जितनी मेरी इंटरेक्शंस हुई है सोशलाइजिंग से, लोगों से मिलते हुए, इन्होंने मेरी कम्युनिकेशन को और बेहतर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी नई सीवी है, जो मेरी अभी की सीवी है, एंड आई वांट टू ask you how it is different than my old CV। ठीक है, अच्छा एक और बात बिफोर आई मूव ऑन, आप एक स्टैंडर्ड सीवी बनाएं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सीवी बनाएं। आपका नाम होगा कुलसुम फातिमा XYZ, ये नंबर होगा, ईमेल होगा, लेकिन जो आपके सीक्वेंस है चीजें रखने की, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है फॉर एनी जॉब। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सीवी बनाई है, सीवी में आपकी एजुकेशन फिक्स रहेगी, एजुकेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका जो नीचे का एक्सपीरियंस है, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। आपने क्लीनिंग ड्राइव्स किए हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम किया है, जेंडर राइट्स पे काम किया है, इक्वालिटी पे काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, बहुत सारे और चीज़ों पे काम किया है, लीडरशिप पे काम किया है। लेकिन जब आप किसी रोल के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जेंडर रिलेटेड रोल के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका जो जेंडर वाला काम है वो आप सबसे ऊपर लेकर आएंगे, सबसे टॉप पे, ताकि वो कहीं गलती से मिस ना हो जाए। जो रिक्रूटर है उसकी नजरों से, जो 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए देख रहा है ना, उसकी नजरों से ये चीज मिस ना हो जाए, बाकी खैर है। तो बाकी अगर मिस हो भी जाता है, दिस इज वेरी रेलेवेंट। सो एवरी सीवी, एक तो पहले आप स्टैंडर्ड बनाएंगे, बट देन फॉर एवरी रोल दैट यू अप्लाई, कीप चेंजिंग दिस रेज्यूमे, कीप स्लाइटली ऑल्टरिंग इट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको शेयर करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरी रेज्यूमे कैसी है, कहाँ कहाँ पे है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, अब देखिए मेरी बहुत सारी रेज्यूमेज है,
और मेरी अलग अलग, जैसे ये है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और रिसर्च रिलेटेड रेज्यूमेस। अगर मैं रिसर्च के लिए अप्लाई करता हूँ, डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करता हूँ, ये मेरा पूरा फोल्डर है, ठीक है। अगर मैं लीडरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, ये पूरा फोल्डर है। सो देयर आर डिफरेंट रेज्यूमेस। जेंडर रिलेटेड ये पूरा फोल्डर है। फैकल्टी पोजीशंस के लिए अप्लाई करता हूँ, ये पूरा फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। सी हाउ रेज्यूमेस आर डिफरेंट। एवरी रेज्यूमे हियर इज डिफरेंट। फर्स्ट करो मैं आपको रिसर्च का दिखाता हूँ, ठीक है। MDF इज वन ऑफ द रिसर्च। सही है। इसमें जो मेन इनको चाहिए था वो था प्रोजेक्ट जो मैनेज कर सके, लीडरशिप कर सके, रिसर्च को लीड कर सके। क्या लिखा है मैंने? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे पहले आया मार्क। अब देखिए यहाँ पे एक चेंज सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये 2 पेज की है, 3 पेज से हटा के मैं लेकर आ गया हूँ अब 2 पेज पे। इवन दो मेरे साल ज्यादा हो गए काम करते, लेकिन मेरी रेज्यूमे छोटी से छोटी होती जा रही है। आपको, आप जो IMF के चेयरमैन वगैरह है ना, उनकी रेज्यूमे देखिए, वो 1 पेज की है। तो आप जितना सीनियरिटी लेवल पे जा रहे होते हैं, आपकी रेज्यूमे उतनी छोटी होती जाती है, क्योंकि आप उतनी डिटेल्स नहीं देते। अब एक और डिफरेंस ये है, अच्छा आप बताएं और क्या डिफरेंस है उस रेज्यूमे में और इस रेज्यूमे में? सर ओपन कर दें तो नजर आ जाए। हाँ अभी नजर आ रहा है ना? ओपन नहीं है, ओपन नहीं है? सीवी ओपन नहीं है। अच्छा एक सेकंड। फोल्डर नजर आ रहा है, इस सीवी पे क्लिक करके यस नाउ वी कैन सी इट। ओके हाँ, अब देखें, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन दैट CV या दिस CV? क्या आपको लगता है डिफरेंसेस हैं इसमें? सोचें, डिस्कस करें एक दूसरे से। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंट, जो मेन डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस वो क्या है? मुझे आवाज इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, दोबारा बोलिएगा। हाँ, कंसाइज दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। कंसाइज है, और क्या हो सकता है? सबसे जो की डिफरेंस है, हाँ if- इफ्तिखार भाई आप मुझे बताते जाए वो क्या बोल रहे हैं वहां से। आप लैपटॉप के करीब से मुझे बताते जाए जो भी वो बोल रहे हैं। आप बताएं, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बेहतर है, बहुत ज्यादा, बहुत बेहतर है जी, बेहतर है। तो इसमें पहले जो है एक्सपीरियंसेस इसमें डिस्कस हुई है, जो एजुकेशन अचीवमेंट्स है वो बहुत वेरी 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 गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखिए दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट के पहले मैंने एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया है एंड उसके बाद मेरा एजुकेशन नीचे। अब देखिए एज यू गो फर्दर डाउन, फर्दर अप योर करियर,
पहले आप हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी, सही है, दिस इज द बेसिक, आपकी जो बेयर रिक्वायरमेंट है वो आपकी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के बाद आपकी पहली जॉब स्टार्ट होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जिस तरह प्रोग्रेस करते जाते हैं, प्रमोशन आपकी होती जाती है, देन दिस थिंग बिकम्स नॉट इररेलेवेंट। इररेलेवेंट तो नहीं होती, लेकिन इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं होती। जैसे यहाँ पे सब लोग जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है, इस स्टेज पे। यहाँ पे लोग शायद चाहें बताना कि यार आप कहाँ से पढ़े हैं। अब जब यहाँ पे आएंगे तो पूछेंगे आपने पहले कहाँ काम किया है, तो ये वाली लेयर आ जाती है, ये वाली लेयर नहीं आती, ये वाली लेयर बहुत नीचे चली जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने जब दाऊद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा वेयर हैव यू स्टडीड, उन्होंने मुझे ये पूछा कि वेयर हैव यू वर्क बिफोर, व्हाट इज योर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। तो वो मुझसे माय इंट्रोडक्शन इज चेंजिंग नाउ। आपका जो मैट्रिक है, आपका इंटर है, अब इस स्टेज पे आपका मैट्रिक और इंटर रेलेवेंस उसकी इतनी नहीं रहती। आप अपने जॉब में ये नहीं बोलेंगे आपने इंटर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, क्योंकि इंटर डज नॉट मैटर एनी मोर। अब आप यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस हैं, अब आप यूनिवर्सिटी में बोलेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशंस क्या थी, उसमें आपने क्या हासिल किया है। डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे वो एक्सपीरियंस पहले नहीं डाला, पहले मैंने डाला है मेरी कॉम्पिटेंसीज। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोवाइड oversight for projects and establish a set of tasks and activities. Strong knowledge of, अच्छा ये एक और मैं टिप आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा रेज्यूमे की, लेकिन अभी आप ये देखें कि मैंने विद एग्जांपल्स उनको बताई हैं कि रिसर्च एनालिसिस मेरी क्या है। Along with contributions in research journals, I contribute as an independent analyst for the News International, have written analytical pieces ranging from tackling Pakistan's economic wars. अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज इनकी लिखी हैं द न्यूज इंटरनेशनल के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ दो चीजें हाईलाइट की हैं, एक वाटर क्राइसिस पे और एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इसको ये दो चीजें अट्रैक्ट करेंगी, तो मैंने इसलिए उनको ये दोनों चीजें बताई हैं, उनको बाकी चीजें मैं बताई नहीं। हालांकि मैंने 8-10 आर्टिकल्स इनके लिखे हैं, मैंने सिर्फ उनको दो की एग्जांपल्स दी है। सो यू हैव टू सी व्हाट रेलेवेंस इट होल्ड्स फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्लानिंग कमीशन इस्लामाबाद में मैंने जॉब की है, वहां मैंने क्या किया है। सो दिस होल थिंग इज वेरी डिफरेंट देन अदर सीवीज। मैं आपको अभी अपनी रेलेवेंट सीवी अभी की दिखाता हूँ जो मैंने अभी इस जॉब के लिए सबमिट की थी, ठीक है। ये मेरा जो अभी मेरी सीवी है उसमें मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। यू कैन ऑल सी द सीवी राइट। अब देखिए यहाँ अब मेरी वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सबसे पहले आता है, फिर मेरी आती है यहाँ पे एजुकेशन, फिर मैं लेकर आया हूँ अपनी लीडरशिप एक्टिविटीज एंड देन एडिशनल। अच्छा ये सीवी 3 पेज की है, लेकिन आई वुड अर्ज यू गाइज टू मेक श्योर आपकी सीवी 2 पेज से ज्यादा ना जाए। ये सीवी 3 पेज की इसलिए है क्योंकि जॉब मुझे ऑलरेडी मिल चुकी थी इस जगह में। आई एम ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने उससे बाद मुझे बोला कि अपनी जो रिवाइज सीवी है वो मुझे भेजें ताकि हम डेटा अपने सिस्टम में ऐड कर सकें। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा उनको डेटा बताया कि क्या क्या एग्जैक्टली किया है। नॉर्मली इफ आई एम अप्लाइंग फॉर एनी जॉब आई वुड मेक श्योर जो मेरी सीवी है वो 2 पेज से ज्यादा ना हो। इवन दो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, मेक श्योर यू ब्रिंग इट डाउन टू 2 पेजेस ओनली। आप रेलेवेंट मटेरियल कट डाउन कर लें फ्रॉम एनीवेयर। जैसे यहाँ पे देखें, हम 2 एक्सपीरियंसेस है मेरे KSPL में, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है 1 साल का, ये मेरा प्रमोशन के बाद का है जो तकरीबन 8 महीने रहा है, ठीक है। अब जो प्रमोशन के बाद 8 महीने का था वो मैंने बहुत ही हल्का सा किया है कि 8 महीने इज लेस, 1 साल जो मेन था यहाँ पे मेरे सबसे ज्यादा काम हुआ है, तो यहाँ मैंने सबसे ज्यादा डिटेल्स बताई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग रेलेवेंट है, मैंने ज्यादा डिटेल्स बताई है। अलिफ एलान रेलेवेंट है, मैंने डिटेल्स। अब देखिए पुरानी सीवी में एक जगह थी शाशान मार्बल्स, मुझे लगा यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, इवन दो मैंने 1 साल काम किया है मार्बल इंडस्ट्री में एज देयर सेल्स क्या कहते हैं मार्केट एनालिस्ट, लेकिन इस जॉब के लिए जरूरी नहीं है मुझे बताना।
तो मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं है कुछ वहां पे। देन कम्स योर एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन का सेक्शन मैंने कितना छोटा किया, पहले कितना बड़ा हुआ करता था। पहले मैंने मोनाश में ही ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ डाला था, कोपेनहेगन में पूरा एक पैराग्राफ डाला था। अब मैंने बहुत छोटे छोटे करके डाले हुए हैं कि बिल्कुल रेलिवेंट सा है, नथिंग एल्स। ना मेरा ओ लेवल्स का यहाँ पे दिखाया है, ना मेरे ए लेवल्स का। जैसे यहाँ पे देखे ये पुरानी सीवी दिख रही है ना आपको, ये पुरानी वाली सीवी दिख रही है आपको अभी? ठीक है, यहाँ देखे मैंने बैचलर्स बताया हुआ है, मैंने एक्सचेंज बताया हुआ है, मैंने ओ लेवल्स तक भी बताया हुआ है, ए लेवल्स तक भी बताया हुआ है। लेकिन अब इस स्टेज पे ओ लेवल्स ए लेवल्स की जरूरत नहीं है, इंटर मैट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपको एक स्टेज के बाद। यहाँ पे मुझे लगता है लीडरशिप बताना जरूरी है। ठीक है, हम उनको बताएंगे कि यार हम और क्या क्या मैं कर चुका हूँ या क्या क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया मैं BYC का को फाउंडर हूँ, मैं ग्लोबल शेपर का ये हूँ। सो दीज आर वेरी रेलिवेंट। मुझे लगता है कि ये जो सेक्शन है दिस कुड बी इक्वली रेलिवेंट एज माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आप लोगों का भी यही होगा। जब आप किसी भी उस पर बात करेंगे रेज्यूमे के लिए, मेक श्योर के जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो टॉप पे आ जाए। इट कुड बी योर स्किल्स, इट कुड बी योर वॉलंटियर एक्सपीरियंस और लीडरशिप खासकर। कोई सवाल है इस स्टेज तक? कुछ क्लैरिटी अगर किसी को कुछ नहीं है तो? आप लोगों ने एक बात सुनी है जिसको कहते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का किसने सुना है? हाथ उठा दे अगर आपने कवर लेटर का सुना है। किसी ने नहीं सुना कवर लेटर का? नहीं? अब बताएं। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। लेकिन मुझे ये बता, आपने कवर लेटर का वैसे सुना हुआ है? आई थिंक आप लोगों का हैंग हो रहा है। शेयर, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ठीक आप है। मुझे सिर्फ आप मुझे एक आइडिया देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में मैं बिल्कुल न्यूबी हूँ, मतलब बिल्कुल समझे आप, मैं फर्स्ट टाइम अपनी सीवी लिख रहा हूँ किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी मतलब जॉब के लिए, तो उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं?
बिल्कुल, थैंक यू श्रेया। अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो रेज्यूमे जो आपकी बिल्कुल आप नए हैं इंडस्ट्री में, तो क्या-क्या रेलेवेंट है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि फिलहाल जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, तो सबसे रेलेवेंट है आपकी एजुकेशन, सबसे रेलेवेंट आपका वो है। सबसे पहले आपका नाम, आपकी इन्फॉर्मेशन आती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन कम्स योर एजुकेशन बिट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा फिर आता है आपकी बाकी लीडरशिप और बाकी एक्सपीरियंस, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर, वो आता है। सो आप ये ना सोचें कि यार आपको बस 2 पेजेस सीवी भरनी है। अगर आपका सीवी आपकी 1 पेज पे भी आ रही है या 1.5 पेज पे आ रही है, दैट्स गुड इनफ, दैट्स परफेक्टली फाइन। इवन 1 पेज की सीवी इज़ फाइन, अगर आप रेलेवेंट मटेरियल लिख रहे हैं। अब देखिए, इर्रेलेवेंट मटेरियल मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप 10 पेज का भी लिखेंगे ना, इट डज़न्ट मैटर। मैं देख के ही मैं फेंक दूँगा, और बाकी रिक्रूटर्स भी यही करते हैं, मैनेजर्स यही करते हैं। दे वोंट लुक एट इट। तो बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें 1 से 1.5 या 2 पेज में मैक्सिमम। अब आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। मैं आपको अब बताता हूँ कवर लेटर क्या है। देखिए, जब हम रिज़्यूमे लिख रहे होते हैं, हम अपनी पूरी कहानियाँ रिज़्यूमे में नहीं बता सकते। एक हम बेसिक कुछ बताते हैं, उसके बाद हम कहते हैं यार बाकी इंटरव्यू में हम बता देंगे। लेकिन जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो चाहते हैं कि यार हम पहले कैंडिडेट को सही से असेस कर सकें, इंटरव्यू का टाइम बहुत बाद में आएगा। तो वो एक एडिशनल चीज़ आपसे डिमांड करते हैं, वो कहलाता है कवर लेटर। कवर लेटर यूजुअली 1 पेज का होता है, और उस 1 पेज में आप बताते हैं कि व्हाई यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन। ठीक है? मैं आपको अब कवर लेटर की एक एग्जांपल बताता हूँ। एक सेकंड। दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ अ कवर लेटर, लेकिन देखें ये दिख रहा है आपको? ठीक है, उसमें मैंने लिखा है कि डियर एचआर मैनेजर XYZ, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एज एडवर्टाइज्ड ऑन योर वेबसाइट। अब यहाँ पे फर्ज करें आपने जॉब कहीं और देखी है, तो आप लिखेंगे एज एडवर्टाइज्ड ऑन rosie.pk या एज एडवर्टाइज्ड ऑन UNDP's पेज और समथिंग। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज, हु आर यू। आई हैव ओवर 2 years of professional experience in the field of socio-economic development, in addition to 7+ years of volunteer experience. The reason I believe I make a perfect candidate for this position are my advanced educational background, strong linkages with relevant stakeholders, a comprehensive understanding of Pakistan's socio-economic dynamics, a persistent thirst of sharing my knowledge and experience from within Pakistan and abroad. यहाँ एक लाइन पे मैंने उनको बता दिया कि एक पैराग्राफ में मैंने उनको बता दिया है व्हाई आई थिंक आई कैन बी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अब मुझे पता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वो लोग कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं, वो है स्टेक होल्डर से इंगेज करना, सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स पाकिस्तानी समझना, और एक फ्लेक्सिबल बंदा जिसको बाहर की भी नॉलेज है और पाकिस्तान की नॉलेज है। मुझे पता है वो क्या ढूंढ रहा है, तो मैंने उनको ही सम अप करके यहाँ पे बता दिया कि वाई एम द परफेक्ट। अब फिर उनको बताया करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आजकल मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और अगेन मैं फाइनल दोबारा और उसी पर रिवर्ट करता हूँ कि कौन सी जो मेरी स्किल्स हैं वो मुझे परफेक्ट कैंडिडेट करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। I believe I am a very good fit for the role due to my diverse set of skills and experiences. I have managed projects of more than $50,000 and have worked with all relevant stakeholders that would come handy at this role, including but not limited to Ministry of Planning, Finance, and government bodies and different. अब मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक ऑलरेडी सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट लेकर आ रहा हूँ। जो मेरे नेटवर्क है, मेरा गवर्नमेंट में जो मेरा नेटवर्क है, फॉरेन प्रोजेक्ट्स में, वो मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तो दिस शोज उनको लगेगा कि अच्छा यार ये बंदा ऑलरेडी इस फील्ड में इतना इन्वॉल्व है, इसको एक इंटरव्यू के लिए तो बुला लेंगे। ठीक है, अब आप सीवी और कवर लेटर को सिर्फ ये समझिएगा कि दिस इज योर चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। सिर्फ इंटरव्यू की स्टेज तक आपको ये ले जाएंगे, बाकी आपका अलग काम होता है, बाकी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट।
इसको सिर्फ आप ये करें कि इस तरह अपने सीवी और कवर लेटर को स्टैंड आउट करें कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रेज्यूमे एंड कवर लेटर। ठीक है, और हमेशा जब आप कवर लेटर बनाएं या रेज्यूमे बनाएं, कोशिश करें उसके नीचे जो हेडर होता है, वो सॉरी वो जो हेडर वगैरह नीचे वो जो व्हाट इज द लोअर थिंग, उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर जरूर लिख लें। कि कभी कभी ये होता है कि बहुत सारी रेज्यूमेस आ जाती हैं और रेज्यूमे का जो पहला पेज है वो पता नहीं इधर उधर गुम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मेरे मेरे साथ भी एक ऐसा केस हुआ था। मेरे पास सेकंड पेज है रेज्यूमे का, पहला पेज नहीं है। सेकंड पेज इज रियली गुड, अब मुझे पता नहीं कि इसका पहला पेज किधर है। तो जो नीचे आपका ईमेल और फोन नंबर आ जाता है ना हर पेज पे, तो दैट सॉर्ट ऑफ सेफ गार्ड्स यू कि अगर आपके इधर उधर पेजेस हो भी जाते हैं, जिस पेज को भी वो देख रहा है उसमें आपका नंबर है, जरूरी नहीं सिर्फ पहले पेज पे आपका नंबर है। ठीक है, और अभी तक कोई क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज लैपटॉप के पास आए, यहाँ पे मुझसे बात करें। माइक माइक से भी मुझे आवाज नहीं आ रही, लैपटॉप के पास आके मुझसे पूछ लें कोई भी क्वेश्चन। आपके आपकी रेलेवेंट, आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपकी जॉब मार्केट के हिसाब से कोई क्वेश्चन, क्योंकि ताकि मुझे पता चले कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रही हैं, ताकि मैं उस हिसाब से उसी एंगल को फॉलो करता जाऊं, उसमें आपको बताता जाऊं कि आगे रेज्यूमे में क्या क्या आपको डालना है। ठीक है, नथिंग सो फार। ठीक है, अच्छा I think लिंक्डइन। Sharyar just raised his hand. जी शहरयार कोई क्वेश्चन है बताएं। अच्छा सर, मेरे ये क्वेश्चन है कि सॉरी, मेरा ये क्वेश्चन जी जी है बोलें। कि जो मतलब फील्ड है मेरा, फॉर एग्जांपल मेरा फील्ड है मतलब पॉलिटिकल साइंस है या फिर हिस्ट्री है, तो अगर मैं फील्ड अपना डाइवर्ट करूं, फॉर एग्जांपल मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं ना, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है ना वो उसकी ई कॉमर्स की है ना कुछ, तो इसमें मेरी सीवी की रेलेवेंट चीजें क्या हैं? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपकी वो बात आ जाती है कि क्रॉस फंक्शनैलिटी आप किस तरह हेल्प कर रहे हैं। क्रॉस फंक्शनैलिटी क्या है? अच्छा, क्रॉस फंक्शनैलिटी ये है कि मैं हूँ इकोनॉमिस्ट, लेकिन मुझे जाना है फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की तरफ। अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, अब जैसे आप यूनिवर्सिटी में आपके साथ आपकी बहुत सारे एक्सपीरियंस, आपके छोटे छोटे एक्सपीरियंस आ जाते हैं सोसाइटीज के या आपके काम के। आप उस चीज को, जो भी रेलेवेंट चीज है उसको हाईलाइट करेंगे टॉप पे। फर्ज करूं मैं मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है रियल स्टेट में। ठीक है, रियल स्टेट में घर बेचना वगैरह इधर उधर कराची में। लेकिन अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट के रोल के लिए। लेकिन मुझे याद है यूनिवर्सिटी में मैंने एक सोसाइटी ज्वाइन की थी, उसमें मैंने काम किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो एज कम्पेयर टू द रियल स्टेट का जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इससे भी मैं ऊपर लेकर आऊंगा जो मेरा वो वाला एक छोटा सा सेगमेंट था यूनिवर्सिटी के टाइम पे, क्योंकि मुझे लगता है वो रेलेवेंट है रादर देन मेकिंग एवरीथिंग। अब जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे शहरयार का पॉलिटिकल साइंस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अब वो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपीरियंस को यूज करके टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें आईसीटी की तरफ ले जाते हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ ले जाते हैं कि यार देखिए पॉलिटिकल साइंस में मैंने कंप्यूटर यूज किया था, मैंने असाइनमेंट में कंप्यूटर थोड़ा बहुत यूज किया है, तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस आ गया है, दैट्स व्हाई आई थिंक आई कैन बी अ गुड थिंग। नहीं, नेवर डू दिस, नेवर tilt your experience to match it, always bring the relevant experience। जितना आपका दूर एक्सपीरियंस है डज नॉट मैटर, उसको लेकर आए। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर साइंस में शहर जा सकते हैं, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट कि आप क्यों, आपको लगता है देयर मस्ट बी समथिंग, अ टाइनी एक्सपीरियंस, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का ही सही, मेक दैट रेलेवेंट, मेक दैट योर टॉकिंग पॉइंट। आई थिंक वी ड्रॉप हो गए हैं, सो विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स ताकि ये दोबारा आ जाए।
श्रेया, और कोई क्वेश्चन आपका? हेलो सर, आवाज आ रही है अभी? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन भी है। मैं ये कह रहा था फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम के मतलब फर्स्ट मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर मतलब इन रेलिवेंट चीज़ों के लिए सीवी या कवर लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन उसके लिए ना, हम्म, फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें रेफरेंस लेटर या फिर मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर्स को भेजते हैं वो भी होती है, तो उसका क्या आप मतलब आइडियाज देंगे आप हमें? बिल्कुल। मैं श्रेया, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं ये आंसर करूंगा जब सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये मुझे लगता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में श्रेया? सर मैं स्टिल जो है ना कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं डिग्री कॉलेज खारान से एफएससी का स्टूडेंट हूँ। ये जस्ट चलो, मेरे जो है ना जबरदस्त। कुछ क्या कहते हैं जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन। कंपटीशन बहुत है, और खारान के लोग तो मैंने भी सुना है कि अच्छा खासा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की तरफ आ रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। मीन्स अ लॉट सर, मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। इफ्तिखार भाई, जी मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोग सब वापस आ आवाज आ गए रही है हैं। सब? अब आ रही है जी, बिल्कुल। ठीक है। थोड़ा सा वो नीचे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ग्रेट, जबरदस्त। अब मुझे आपकी सही से आवाज आई है। अच्छा, अब पहले तो एक शहरयार ने अभी क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर कर दूं, एंड देन आई कैन टेल यू, देन वी विल गो ऑन क्रिएटिंग वन रेज्यूमे, ठीक है? अच्छा, उसने शहरयार ने पूछा कि जब आप फर्दर एजुकेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक चीज होती है, वो पूछते हैं कि रेफरेंस लेटर अपनी यूनिवर्सिटी लेकर आओ। रेफरेंस लेटर क्या होता है? रेफरेंस लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो आपसे आपको जानते हैं 1 साल से या 1.5 साल से, जिनको लगता है, जो आपको लगता है कि जिनके साथ आपकी रिलेशन अच्छी है, आप उनको बोले मेरे लिए काइंडली एक रेफरेंस लेटर लिख लें। रेफरेंस लेटर एक बहुत जनरल सा लेटर होता है कि यार ये लड़की XYZ कुलसूम मेरे डिपार्टमेंट में मेरे क्लास में रही है, एंड शी इज वेरी एनर्जेटिक, शी इज डूइंग दिस दिस दिस, इसको कर लें। मैं अगर आपको रेफरेंस लेटर का एक वो दिखा दूं, वो मैं आपको फॉर्मेट अभी दिखाता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे में क्या क्या जो स्टेज पे, आपकी स्टेज पे रेज्यूमे है, ठीक है? सो आई विल गो बैक टू माय ओल्डेस्ट रेज्यूमे जो मैंने यूनिवर्सिटी टाइम पे बनाई थी। सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है? सेकंड आपका आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल में अब जो अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो अभी की अपनी एजुकेशन लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें ऑनगोइंग या कंटिन्यूइंग। ये कंप्लीट नहीं है तो कंटिन्यूइंग इस पे लिख दीजिएगा, लेकिन अभी रेज्यूमे अपनी अभी से बना लें। आपका जो इंटर हुआ है इंटर का बताएं, आपका जो मैट्रिक हुआ है मैट्रिक का बताएं, ठीक है? सेक्शंस सेक्शंस में करें, ताकि जो रिक्रूटर है, जो मैनेजर आपको हायर करेगा ना,
उसके लिए आसानी हो देखने में। फिर अपना बताएं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें आपकी सारी वॉलंटियरिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अपने स्किल्स या लीडरशिप एक्सपीरियंस बताएं, जो आपने यूनिवर्सिटी में और क्या क्या किया है। जरूरी नहीं है ये 2 सेक्शंस हो, ये मैंने 2 सेक्शंस बनाए हैं, ये एक सेक्शन में भी कंबाइन हो सकता है, ये इतना लंबा करने की वैसे जरूरत नहीं है। फिर अदर ट्रेनिंग्स, जैसे ये ट्रेनिंग आपने अटेंड किया है ना, दिस कम्स हियर कि अटेंडेड अ 2-hour वर्कशॉप ऑन resume writing conducted by Circle and Frederick Newman's ये organization on this day, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाता है, ये आपका पूरा सेक्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है। रेज्यूमे आप बनाएंगे कहाँ पे? अच्छा, ये स्किल्स आपकी आ जाती हैं, लैंग्वेज स्किल्स, बलोची, ब्रावी, पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, मलय, हिंदी। अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल रेज्यूमे में और लोकल रेज्यूमे में थोड़ा सा फर्क होगा। तो फर्ज करें वहां पे आपने हिंदी लिख दी है, यहाँ पे आप हिंदी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उर्दू इज द लैंग्वेज इज द सेम थिंग। वहां पे मैंने डेनिश और मलय भी लिखी है, क्योंकि वहां पे रेलेवेंट है। यहाँ पे अगर इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है तो आई एम नॉट गोना फोकस ऑन दिस। आपकी कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, गुड कमांड ऑफ एमएस ऑफिस डेवलप्ड थ्रू असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल। आई थिंक वी लॉस्ट देम अगेन। जी, ये इफ्तिखार भाई अनम्यूट कर दें ताकि उनकी आवाज आ जाए मुझे। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, बिफोर हमारा वो जो इंटरनेट दोबारा कट ऑफ हो जाए, देयर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू एम्फसाइज। जो आजकल की मार्केट है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्वेटा में कितनी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अब जब आप क्वेटा से बाहर आएंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को टच करेंगे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को टच करेंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ लिंक्डइन होता क्या है। एंड दैट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक टाइप का, लेकिन इट्स वेरी मच यूज्ड फॉर रिक्रूटिंग। वहीं से आप जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं, वहीं से जो रिक्रूटर्स हैं आपको सेलेक्ट भी कर रहे होते हैं। एक आपकी सीवी लिंक्डइन पे भी मौजूद होती है। मैं आपको भी लिंक्डइन दिखा देता हूँ। आपको प्रोफाइल ये दिख रहा है, लिंक्डइन का पेज दिख रहा है आपको? दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए लिंक्डइन इज लाइक अ वेरी थॉरो सीवी, आपकी ऑनलाइन सीवी है। आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ऐड हो सकते हैं, यू कैन इन्वॉल्व इन डिफरेंट डायलॉग्स। जैसे यहाँ पे मेरा एक बहुत ही बेसिक सा बैकग्राउंड मैंने दिया हुआ है, समरी दी हुई है कि मैं हूँ कौन। उसके अलावा आप जितना भी नीचे जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये मैंने पहले कहाँ कहाँ मैंने मेरी राइटिंग क्या क्या है, कहाँ कहाँ मैंने टैग्स सारे यहाँ पे किए। फर्ज करें ये आर्टिकल मैं खोलता हूँ, ये नया आर्टिकल है। इसके अलावा पुराना एक्सपीरियंस मेरा क्या है, मैंने चीजें यहाँ पे पूरी लिस्ट डाउन की है। तो ये एक रिक्रूटर के लिए बहुत आसानी हो जाती है जब वो आपके ऊपर रिसर्च करता है ना कि यार चलो कुलसुम ने अप्लाई किया है, कुलसुम के बारे में लिंक्डइन पे सर्च करता हूँ, उसका प्रोफाइल है नहीं है, तो ये आपका एक प्रोफाइल आ जाता है पूरा लिंक्डइन का कि ये है कौन। ठीक है, लिंक्डइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर जॉब्स लाइक यूएन की जॉब्स के लिए, या जो बाकी इंटरनेशनल इदारे हैं वो लिंक्डइन जरूर देखते हैं आपका।
ठीक है, देखते हैं आप ऑनलाइन आपका प्रेजेंस क्या है। फेसबुक कोई नहीं देखता, ट्विटर बहुत कम देखते हैं, लिंक्डइन इज वन की थिंग दैट अ रिक्रूटर यूजुअली लुक्स। अब आते हैं आपकी सीवी बनाने पे। सीवी आप कहाँ से, एक तो आप वर्ड पे बनाएंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। लेट मी शो यू के ठीक है, लेट मी शो यू द वर्ड जहाँ पे आप ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना वर्ड फाइल मेरा। तो यहाँ पे जब आप टेम्पलेट्स में आएंगे तो टेम्पलेट्स में यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च में रेज्यूमी। ये देखें आपका ऑलरेडी आ गया है, क्रिएटिव सीवी आ गई है, क्रिएटिव कवर लेटर आ गया है, क्रिस्प एंड क्लीन सीवी आ गया। तो यहाँ से आप एक टेम्पलेट सेलेक्ट करें कोई भी। ये ऑलरेडी आपको बता रहा है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ये चेक करें आप। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिकंदर बिजेंचो, मेरी सीवी है। ठीक है, अब इन्होंने ऑलरेडी आपके हेडिंग्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपका समरी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव कि आप करना क्या चाहते हैं। टू वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनीज ऑन एक्सटर्नल एंगेजमेंट। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव आ गया। स्किल्स मेरी क्या क्या है, एक्सपीरियंस, जॉब टाइटल, पुराना एक्सपीरियंस क्या है, मैनेजर XYZ, फ्रॉम कब से लेके कब तक। ये आपका पूरा टेम्पलेट बना हुआ है जो आप इसमें कर सकते हैं। एजुकेशन, डिग्री, बैचलर्स 2021 को मिला है मुझे, SBK वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी आ जाता है। ईमेल आपका, यहाँ पे आपने ईमेल लिख दें। तो ये जो एक टेम्पलेट आपका है, आपको दिख रहा है ना ये टेम्पलेट जो मैं फिल कर रहा हूँ। आपको ये टेम्पलेट दिख रहा है जो मैं फिल कर रहा हूँ? आप लोगों को ये टेम्पलेट दिख रहा है जो मैं फिल कर रहा हूँ? नहीं दिख रहा? तो यार इसलिए मुझे पहले बता दिया करें ना, जब मैंने टेम्पलेट पूरा फिल कर दिया। हाँ, जैसे ये देखें, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है आपको ये टेम्पलेट? आपको पेज दिख रहा है ना जो मैं फिल कर रहा हूँ अभी? ओके ग्रेट। जैसे फर्ज करें ये ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना हुआ है, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया, यहाँ मेरे स्किल्स हैं। यूज योर ओन लैंग्वेज नॉट जार्गन। देखिए यहाँ पे उन्होंने टिप्स भी दी हुई हैं खुद। जार्गन का मतलब वो होता है कि जार्गन जो हैवी वर्ड्स हैं, जैसे मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इकोनॉमिक जार्गन, इकोनॉमिक जो बहुत ही मुश्किल वर्ड है वो यूज नहीं करने मुझे यहाँ पे। मुझे सिंपल वर्ड यूज करने, जब कोई एक लेमैन जो मेरी सीवी देखे उसको समझ में आ जाए। एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, मैनेजर XYZ फ्रॉम दिस। बैचलर्स 2021 SPK वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको एक पूरा टेम्पलेट आ जाता है और टेम्पलेट आपको बता रहा है you might want to include your marks here in a brief summary of relevant courses. For example, GPA 4.0 out of 4.0, cleared all the exams including electives from political science. ठीक है, ये आप जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड कर लें। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, लीडरशिप, यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया, यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना ट्विटर हैंडल, अगर कुछ ट्विटर है, अगर नहीं है तो ये पूरा डिलीट कर दें। ठीक है, ये डिलीट हो गया। लिंक्डइन URL नहीं है तो ये डिलीट कर दें। ठीक है, इस तरह की आपको टेम्पलेट्स वर्ड फाइल पे बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसमें आप अपने हिसाब से रेलेवेंट सीवी बना सकते हैं। ये टेम्पलेट ऑलरेडी एक बन चुका है, जैसे एक पेज का है, ये बन चुका है। इसमें आप सिर्फ चीजें पुट करनी है, प्लग इन करनी है कि आपकी रेलेवेंट चीजें क्या है।
ये हो गया मेथड नंबर 1 जो आप वर्ड से करेंगी। मेथड नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 2 आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके अपनी सीवी बनाएंगे। जैसे फर्ज करें ये आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट का नाम है कैनवा, CANVA, कैनवा। ठीक है, इट्स अ फ्री वेबसाइट, CANVA। इसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, इसमें फ्लायर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, इट्स फ्री। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर होम के पास राइट साइड पे वो है बटन है, इसको कहते हैं टेम्पलेट। देखिए दिख रहा है आपको? होम के बिल्कुल साथ देखें टेम्पलेट लिखा हुआ है, टेम्पलेट पे आए। अब टेम्पलेट पे यहाँ देखिए रेज्यूमे है, सेकंड साइड पे 3rd नंबर है रेज्यूमे। ठीक है, मैंने क्लिक किया रेज्यूमे पे। रेज्यूमे पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे टेम्पलेट आ जाते हैं। अब आपको जो भी आपको अच्छा लगेगा वो चूज करें। फर्ज करें आप कहेंगे कि मुझे क्रिएटिव साइट पे मुझे बनानी है। अब देखिए बहुत सारों में तस्वीर है, बहुत सारों में नहीं है। बहुत सारे मुल्कों में तस्वीर अच्छा लगता है तस्वीर देना, बहुत सारे मुल्कों में नहीं होता। फॉर मी पर्सनली आई डू नॉट लाइक द फोटो वन। बहुत कम मैंने बनाई है, मेरी भी एक तस्वीर है, एक रेज़्यूमे है तस्वीर वाली, लेकिन यूजली मुझे मेरी करियर के हिसाब से मुझे रेलेवेंट नहीं लगता। आपको रेलेवेंट लगे कर दें। फर्ज करें बहुत सारी सीवी हैं, जैसे ये सीवी आपको अच्छी लग गई, आपने इस पर क्लिक किया। ठीक है, आपको दिख रहा है ये? ठीक है, ये सीवी आपको अच्छी लगी है, इस पर आपने क्लिक किया। ठीक है, ये वाली सीवी है। अब आप इसको फिल करेंगे यहीं पे, जैसे यहाँ पे एना प्राइस को हटा के फारिहा जमाली फर्ज करें। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसको यू कैन प्ले अराउंड। ठीक है, प्रोफेशनल मॉडल, ये भी किसी मॉडल की सीवी है। कॉन्टैक्ट नंबर पे, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपकी वेबसाइट है, ये हर चीज आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका समरी है। प्रोफाइल समरी में क्या लिखेंगे कि हम प्रोफेशनल, a graduate of SBK University. I'm looking for a professional opportunity in data sciences in क्वेटा और कराची। ठीक है, ये आपका ये आ जाता है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? सही है। सो देर आर अ लॉट ऑफ दीज टेम्पलेट्स। इस तरह के टेम्पलेट्स बहुत है यहाँ पे, कैनवा पे आपको मिलेंगे। हम एक और देखते हैं, कैनवा का ही टेम्पलेट देखते हैं। I think we've lost them again.
जी इसका भाई अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ग्रेट। हम कैनवा की बात कर रहे थे। कैनवा पे मैं आपको एक और टेम्पलेट दिखाता हूँ। ठीक है, कैनवा पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे ये टेम्पलेट है, यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। नईमा खान। ठीक है, फैशन डिजाइनर। About me, I'm a creative fashion designer with a passion for practical and stylish clothing. I have a strong background in technical construction and textile design. ठीक है, यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताएंगे बेसिक, या फिर करियर हिस्ट्री है। अब देखें, ये अलग अलग रेज्यूमेज हैं अलग अलग फील्ड्स के लिए। मेरी फील्ड है इकोनॉमिक्स। मुझे इतना ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है अपने रेज्यूमे में। मुझे दिखाना है कि मैं इकोनॉमिक्स को कितने अच्छे से समझ सकता हूँ। फॉर दिस सीवी, दिस इज अ क्रिएटिव डिजाइनर की सीवी। इसको बताना है कि यार वाकई में इसके दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ घूमता है। तो जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं, उस फील्ड को अपने दिमाग में रख के अपनी सीवी बनाइएगा। ठीक है, ये फर्ज करें आपने बना ली, अब डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये आपका डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, फर्ज करें मैं आपको दोबारा अब डाउनलोडेड वर्जन दिखाता हूँ इसका। अब देखिए, ये डाउनलोडेड वर्जन आ गया। ठीक है, ये पूरा नईमा खान क्रिएटिव डिजाइनर, ये वो पूरा आपके एजुकेशन का आ गया। यहाँ पे हाई स्कूल कंप्लीशन का आ गया, जूनियर डिजाइनर आपने काम किया। अब यहाँ पे देखिए स्किल्स इसने कैसे आइडेंटिफाई किया है। जैसे मैंने लिखा था ना बलोची फ्लुएंट, ब्रावी फ्लुएंट, XYZ। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लाइन लगाई हुई है। फैशन इलस्ट्रेशन, इसने अपनी लाइन लगाई हुई यहाँ तक मुझे आता है। दैट मीन्स 65-70% तक आता है। यू कैन अज्यूम ट्रेंड फोरकास्टिंग 45%, और टेक्सटाइल डिजाइनिंग 90%, टेक्निकल डिजाइन 90%, टेक्निकल ड्रैपिंग ऑलमोस्ट 60%, पैटर्न डिजाइनिंग 80%, 60-70%। ठीक है, अब ये क्रिएटिव स्टाइलिश सीवी है। इसमें आपको इतनी ज्यादा एक्सट्रीम मेहनत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके लिए बन चुका है। आपको सिर्फ उस वेबसाइट पे जाके अपने लिए सीवी बनानी है। दैट्स इट। आई थिंक वी हैव लॉस्ट देम अगेन। जी, अनम्यूट कर दें प्लीज। यस, परफेक्ट। तो मैं आपको दिखा रहा था ये कैनवा वाली सीवी, और मैं आपको बता रहा था कि um, ये बहुत इजी तरीके से बन जाती है। आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वेबसाइट पे जाएं, अपनी डिटेल्स प्लग इन करें और ये बनाएं। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से लिखी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, देखिए ये स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज में कितने जबरदस्त तरीके से लिखी है। दिस शोज कि ये क्रिएटिव सीवी है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट सीवी, दिस इज अ क्रिएटिव सीवी। तो आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे ना, उस फील्ड की एक सीवी बनाएगा, उस फील्ड से रिलेटेड। अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री, अगर फर्ज करें आप अपनी एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रही हैं, या आप क्लोथिंग ब्रांड के साथ जाना चाहती हैं,
तो आपको उस हिसाब से एक सीवी सोचनी पड़ेगी कि यार उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू दे नीड, उस हिसाब से अपनी सीवी बनाएंगे। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सॉरी, आप लोगों का बार बार इंटरनेट कट रहा है, that's very unfortunate। जी। तो मैं ये कह रहा था कि इंडस्ट्री को देख के अपनी सीवी बनाइएगा, और जब भी कोई सीवी बनाए, मेक श्योर आप जो भी क्लेम कर रही हैं, जो भी बातें सीवी में बता रही हैं, उसका एक बैकअप सपोर्टिंग एविडेंस भी आप बताएं। कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि मैंने बताया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो मैंने उसको बैकअप एग्जांपल भी दिया है कि क्यों अच्छी हुई हैं। अगर मैं उनको बताऊंगा कि मैं एक गुड लीडर हूँ, आई हैव द लीडरशिप कैपेबिलिटीज, तो मैं उसके साथ एक एग्जांपल भी दूंगा कि यार आई हैव लेड टीम्स ऑफ 400 पीपल एट टाइम्स और 300 वॉलंटियर्स। ठीक है। You just do not have to give experience from your professional capacity, but also your personal life. ये CV में a CV consists of your life experiences, not just your professional experiences. आपने कोई चीज यूनिवर्सिटी से बाहर भी की है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बाहर भी की है, that is also part of your resume. That can also come as the reflection of your resume कि ये XYZ चीज मैंने अपने गांव में की थी, या मैं अपने गांव गई हूँ, नौशकी गई हूँ, या वड गई हूँ, या नाल गई हूँ। वहां पे मैंने जो एक छोटा सा स्कूल है, वहां पे मैं कभी कभी हर वीकेंड जब जाती हूँ तो मैं ऑन क्लासेस देती हूँ बच्चियों को। दैट इज योर CV। इट मेक्स योर CV stronger। दिस पर्सन हैज क्रॉस फंक्शनैलिटी, दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग एल्स। देखिए मेरे पास, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे पास अगर 10 CV आ जाती हैं, एक CV थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है बिकॉज ऑफ द वॉलंटियर वर्क, बिकॉज द कम्युनिटी वर्क, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप वर्क, आई विल पुट मोर थॉट इन दैट CV। मैं उसको 10 सेकंड ज्यादा देखूंगा उस CV को, और फिर that means 2 seconds more from a recruiter can be a make or break CV। एक और बात I think is very very important and very relevant as well। Always keep your connections warm with managers, with recruiters। Write them emails। email लिख दें कि फर्ज करें आज आपका सेशन मेरे साथ है, या कल आपका किसी और के साथ सेशन है, सर्कल वालों ने किया है। राइट एन ईमेल टू मी या सर्कल वाली टीम को, या कल जो आपका कोई और सेशन होगा उनको, कि thank you sir, it was a wonderful session, I hope to keep my connections with you, and if you see any opportunity in this area, please let me know, thank you again for your session। so this shows कि यार जो आपकी क्लास में 50 लोग हैं, 50 लोगों ने ईमेल नहीं की, सिर्फ आपने ईमेल की है, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग स्लाइटली डिफरेंट देन द रेस्ट। दैट मीन्स आपका थॉट प्रोसेस इज मोर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है आप रिएक्टिव नहीं है, आप प्रोएक्टिव है, आप पहले काम करती हैं। देन you're not waiting for someone else to push you to work, you're taking charge on your own। so always develop this habit in your life, not just for resume but in general in your life as well। be proactive। resume आप किन को भेजेंगे? you cannot just send one resume to hundreds of people। जब भी आप किसी को रेज्यूमे भेजें, फर्ज करें आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन दाऊद हरकिलीस को रेज्यूमे भेजा है, पहले तो आप दाऊद हरकिलीस के बारे में पढ़ेंगी, उसके कल्चर के बारे में पढ़ेंगी। देन व्हेन यू राइटिंग एन ईमेल, you write ke dear HR manager at Daud Hercules, I'm very impressed by the work that you guys do। I love the corporate culture of inclusivity that you guys are doing, and I think I can thrive in such a work atmosphere, and I can bring a very diverse experience in your work। तो ये जो आप ईमेल बनाएंगी, दिस शोज कि एक पर्सनल ईमेल आपने की है, दाऊद हरकिलीस को दिमाग में रखे, रादर देन वन स्टैंडर्ड ईमेल।
मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जिन्होंने मुझे अपनी सीवी भेजी है और नाम किसी और का लिखा है, डियर शेरियार प्लीज फाइंड द अटैच्ड रेज्यूमे। दैट शोज कि आपने 100 रेज्यूमे भेजी है पता नहीं किसको रैंडमली, एंड यू थिंक कि मैं आपकी रेज्यूमे पढ़ूंगा? बिल्कुल भी नहीं, अनलेस यू एड्रेस इट टू मी डायरेक्टली कि डियर सिकंदर, ये मैं रेज्यूमे आपको इस चीज के लिए भेज रहा हूँ, प्लीज ये जरा देख लीजिएगा, तब मे बी आई कैन रीड योर रेज्यूमे, तब मे बी अनदर एचआर ऑर्गेनाइजेशन, एचआर विंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रीड योर रेज्यूमे। सो जब भी आप किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि यू डू द पर्सनल टच वाले नेटवर्क, मतलब यू डोंट जस्ट रैंडमली आस्क देम फॉर हेल्प, यू कीप योर कनेक्शंस वार्म, ताकि वो अगर आपको आगे रेफर कर सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम माय रीसेंट हायरिंग, या जो मैंने कुछ महीने पहले मैंने हायरिंग की थी। सो आई पोस्टेड एन एड ऑनलाइन एंड ऑन आवर वेबसाइट के मुझे एक कोऑर्डिनेटर और 2 इंटर्न्स की जरूरत है, दैट मींस आई एम हायरिंग 3 पीपल। अब उसमें से 2 लोग जो ऐसे थे जो मुझे थ्रू समवन एल्स मिले थे, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री एक्सपर्ट मैसेजिंग मी कि सिकंदर, आई एम रेफरिंग दिस गर्ल टू यू, प्लीज इसको देख लेना। फिर मैं उसकी रेज्यूमे देखता हूँ, आई एम लाइक ओके गुड, ये इसकी तरफ से रेफरेंस भी है और एक नाम भी है। तो यहाँ देखें, आई एम नॉट सेइंग पर्ची वाला रेफरेंस जो बलुस्तान में जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा होता है, वो वाला रेफरेंस नहीं, दिस इज प्रोफेशनल रेफरेंस, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के थ्रू। जब वो बात आती है कि यार नईमा मेरे साथ काम कर चुकी है 1 साल, इसका जरा देख लीजिएगा आप, तो मैं देख लेता हूँ, लाइक दैट्स अ वेरी गुड रेज्यूमे और रेफरेंस के थ्रू आया, तो I'm going to give more thought to this. तो the point of this is कि make sure आपकी प्रोफेशनल नेटवर्क आप बरकरार रखें with your professors, with your lecturers। जब आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होंगे, इनसे कोऑर्डिनेट किया करें। सर्कल की टीम है, they are very helpful, keep coordinating with them as well for any future jobs or any future positions। this is your professional network, इसको कहते हैं professional network that you are developing throughout this time। CV एक एलिमेंट है जो प्रोफेशनल नेटवर्क के थ्रू आप बेच सकती हैं, भले, लेकिन ये जो रास्ता है ये आपको खुद बनाना पड़ता है, इस पे आपको खुद होमवर्क करनी पड़ती है। जैसे अभी आपके पास एक ऐसी आई गेस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो पहले शायद स्टूडेंट्स के पास नहीं था। ऑनलाइन इस तरह क्लासेस शायद पहले कभी नहीं होगी, बलुस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब कोविड की वजह से वी आर फोर्स्ड टू डू दिस, इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपके पास तो और भी अच्छे मौके हैं कि आप ये चीजें सीखें जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये चीजें, जिन्होंने गलतियां की हैं, जो सीखे हैं इन गलतियों से। तो आपके पास तो ये अच्छा मौका है कि उनसे सीख सकें। एंड we all should be very thankful to the team of Circle to giving you the opportunity and giving me the opportunity to interact with you as well। क्योंकि मैं खुद भी बलुस्तान से हूँ, नाल से हूँ, खुजदार। आई डू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कितने चैलेंजेस हैं। जॉब ढूंढना इतने आसान बात नहीं है, और हर कोई गवर्नमेंट में ना जा सकता है और ना ही हर किसी को शौक होता है गवर्नमेंट में जाने का। देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज दैट वी शुड एक्सप्लोर एज वेल। तो इस तरह के प्रोफेशनल नेटवर्क जो आप इन सर्कल से बनाते हैं, इस तरह के सेशन से बनता है, ट्राई टू रिटेन देम। अभी फर्ज करें आपका कल कोई सेशन है XYZ से, आपने सर्कल को मैसेज किया कि सर्कल की जो टीम आपसे कोऑर्डिनेट करी है उनको मैसेज किया, या आपके जो इफ्तिखार भाई हैं उनको आपने बोला कि सर्कल की टीम का मुझे ईमेल दे दें प्लीज। आप उनको ईमेल करें कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ SPK, थैंक यू फॉर द सेशन। जो लेक्चरर था, जो ट्रेनर था फॉर इनोवेटिंग स्ट्रेटजीज वाले सेशन में, उनका ईमेल मुझे दे दें, आई वांट टू थैंक हिम और थैंक हर। ठीक है, दिस शोज कि यार you are thinking outside the box, you are not a random, you're not one of 50, you are a very different, you're unique, you're doing something different। so these things help you throughout your journey in life। always be proactive, not just in terms of your job but in anything। जैसे अभी फर्ज करें कोविड का टाइम आ गया है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं फ्रॉम आवर ओन लाइफ, हमने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था बलुस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना के नाम से, BYAC। हमने ये तंजीम क्यों बनाई? हमें लग रहा था कि बलुस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे मेरा अपना गांव नाल है, वर्ड है, नौशकी है, तुरबत है, अवारान है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं जा पा रही, यहाँ किसी को हेल्प नहीं मिल रही। तो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड आस्किंग आवर फ्रेंड्स टू हेल्प अस, और हमने स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता हेल्प करने। एंड बाय टुडे हमने 15,000 से ज्यादा लोगों में राशन दिया है, 4,000 से ज्यादा डॉक्टर्स में किट्स दी हैं, और बेशुमार बुक्स दे रहे हैं फिलहाल लाइब्रेरीज में। द पॉइंट इज when you do something out of the box,
लेकिन लोग बहुत सारे यही सोच रहे होते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। आप अगर प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, लोग ज्वाइन इन करते हैं एक साथ कि यार मैं भी तो यही सोच रहा था, लेट्स हेल्प दिस गाय, लेट्स हेल्प दिस गर्ल। सो ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, डू नॉट वेट फॉर समवन एल्स टू हेल्प यू, टेक योर ओन लाइफ, टेक योर ओन पोजिशन। आज आप लोग जो एसबीके की स्टूडेंट्स हैं, you are already different, you're already privileged than a lot of other girls in Balochistan जो कभी स्कूल नहीं गए, जो कभी कॉलेज नहीं गए। आपके ऊपर तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यूनिवर्सिटी के बाद कुछ ना कुछ करें, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब करें या अपना बिजनेस करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां दे आर लुकिंग अप एट यू कि यार इन्होंने भी तो तालीम हासिल की, इन्होंने क्या किया, ये भी घर आके बैठ गई हैं। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सिर्फ घर नहीं बैठेंगे, आपको कुछ ना कुछ करना है फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। क्योंकि एट दिस स्टेज जो वुमेन हमारी बलूचिस्तान की खासकर लड़कियां हैं, उनकी शराय ख्वानिंदगी जो है दैट इज लेस देन 20%। दैट इज अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन हु आर एजुकेटेड। और 20% वो हैं जो सिर्फ साइन कर सकते हैं अपना नाम, जो प्रॉपरली एजुकेटेड है वो तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होंगे। एंड यू आर इन अमंग दोज लेस देन 10% वुमेन फ्रॉम बलूचिस्तान हु आर एजुकेटेड। तो आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि whatever you're learning through these sessions, whatever you're learning in the university, आप अपने गांव देहात अपने घर में जाएंगे, अपनी अम्मी से बात करेंगे, अब्बू से बात करेंगे। मेक श्योर you hold the torch when you go back, you teach them as well कि अम्मी आज अम्मा मैंने ये सेशन अटेंड किया, इसमें ये बातें हो रही थी, ये XYZ पता नहीं कहाँ से यूके में पढ़ चुके हैं, ये सर्कल की टीम है, ये काम कर रहे हैं। सो दे नो के उनका जो टाइम, उनकी एनर्जी, जो उनके पैसे हैं जो आप पे खर्च कर रहे हैं, दैट्स नॉट ऑन वेस्ट। और आपको भी एक दिल में वो चाहत आएगी, वो खुद मुख्तारी इंडिपेंडेंस आएगी कि यार मैं भी तो कुछ कर रही हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है। एंड थैंक यू अगेन टू सर्कल्स टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज आई एम हियर, यू कैन कम टुवर्ड्स द लैपटॉप एंड आस्क मी द क्वेश्चन। दूर से मुझे आवाज नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन बता दीजिए, यहाँ पे आके बता दें। तो जी बताएं। सिकंदर साहब, अपना बेजल जोर साहब, अगर कोई आवाज का प्रॉब्लम है काइंडली बता दीजिएगा। आपकी आवाज मुझे सही से आ रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि जो सीवी है उसमें जब कोई स्टूडेंट फ्रेश, मतलब जब मैट्रिक के बाद इंटर, फिर एफएससी और मतलब बीएससी करके यहाँ पे बीएससी करे, मतलब पूरा स्टूडेंट रहा है, वो न्यूली जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अपने सीवी में ऐसा क्या लिखें जो इफेक्टिव? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए शुरू में आपको जाहिर सी बात है आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन आ जाती है। एक छोटा सा शुरू में बहुत सारे लोग एक कॉलम बनाते हैं जिसमें समरी लिख देते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको रेज्यूमे दिखाई, उसमें ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं कि आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट, आई एम लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जब आप ऑब्जेक्टिव शुरू में लिख देते हैं ना, तो जब रिक्रूटर मैनेजर आपकी सीवी देखता है तो उसको पता है कि आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं, आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करता इतना एक्सपीरियंस। रेज्यूमे एक लाइफ एक्सपीरियंसेस है। आपने और भी बहुत सारी चीजें की होगी लाइफ में, जरूरी नहीं आपने काम किया हो, और भी बहुत सारी चीजें की है। ट्राई टू पुट दैट, इफ यू हैव हेल्प समवन, किसी को आपने मदद की है वो डालें। स्टूडेंट यहाँ पे आपने कोई इनिशिएटिव लिया है वो डालें। फर्ज करें आप में से किसी ने सर्कल से कोऑर्डिनेट करके आज ये सेशन करवाया, इट्स अ बिग थिंग, ये डालें। इस तरह की चीजें डाल सकते हैं आप। जरूरी नहीं है आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दीज आर योर एक्सपीरियंसेस। और सर मतलब जो एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटीज है जो कॉलेज, सॉरी, आई थिंक आपकी आवाज कट रही है। स्कूल में अटेंड किया है तो ये सर्टिफिकेट मिले हैं, या सर्टिफिकेट नहीं मिले ऐसे अटेंड किए तो वो भी ओके, आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे आपकी क्वेश्चन पूरा समझ में आया, आपकी आवाज बहुत कट रही थी। सर मैं कह रही थी कि मतलब जी सॉरी, दोबारा बोलिएगा। आई थिंक पहले आप म्यूट अनम्यूट करें।
जी, अब बोलिएगा एक्स्ट्रा। जी जी, एक्स्ट्रा करिकुलर आप कुछ कह रहे थे, सर आवाज आ रही है? अब आ रही है। मतलब जो एक्टिविटीज हम स्कूल में, कॉलेज में या मतलब यूनिवर्सिटी में हम करते हैं वो भी हम कर सकते हैं, या जिनके लिए हमें बिल्कुल, सर्टिफिकेट मिलता है या देखिए आइडियली जैसे आइडियली सर्टिफिकेट वाले, हाँ, आइडियली सर्टिफिकेट वाली चीजें ही डालिएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता वो भी डाल दें, लेकिन आइडियली जो चीजें आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो डालिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि आपने वाकई में ये किया है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत वालेकुम शुक्रिया, अस्सलाम। आपने हमें इतना टाइम दिया। सर मैं बीएड ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद हम फारिग होने वाले हैं। तो सर क्या आप कोई ऐसे वेबसाइट्स बता सकते हैं जहाँ पर हम अपना सीवी जो है वो भेज सके, ताकि फ्यूचर में हमें कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें सर्कल की टीम आपको हेल्प करेगी, क्योंकि सर्कल की टीम ऑलरेडी कनेक्टेड है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स वाले वो है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उनकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो कनेक्ट करेगी। जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मैं सर्कल से कनेक्ट करवा रहा हूँ, आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सीवी के फॉर्मेट में हमने देखा है कहीं पे पिक्चर है और कहीं पे आजकल नहीं दे रहे हैं, तो क्या सर जी इसका बेसिक पार्ट है पिक्चर या नहीं है? ज्यादा जरूरी नहीं है पिक्चर लगाने में फॉर्मेट में? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो जरूरी नहीं है, एज फार एज आई नो, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप ना लगाएं तो बेहतर है। मैं तो कहता हूँ अपनी एज और तस्वीर की जरूरत नहीं है, ये these two things are irrelevant for any position. सर सीवी में एक और पार्ट है कि एक्सपीरियंस, और हम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो हमारे पास कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है और हम स्कूल्स में जाकर टीचिंग के लिए अपना सीवी सबमिट करेंगे, तो जहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है हम वहाँ पे ऐसा क्या लिखें हाँ, अब उस वहां पे आप पार्ट में एक्सपीरियंस जहाँ का पे सेक्शन ही हटा एक्सपीरियंस दें, है? एक्सपीरियंस का सेक्शन हटा दें, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना लिखें, उसमें वॉलंटियर एक्सपीरियंस डाल दें या लीडरशिप एक्सपीरियंस लिख दें या कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस लिख दें। लेकिन टीचिंग के लिए आपको क्या चाहिए? टीचिंग के लिए आपको चाहिए एक तो आपके पास पता हो आप क्या पढ़ाएंगी और आपको डिलीवर करना आता हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि व्हेन यू गो टू सबमिट योर रेज्यूमे वो देखते हैं कि यार ये लड़की ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी है, इसने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी हैं, क्लास के सामने खड़ी होकर बात कर चुकी है, सो शी इज अ कैंडिडेट, जरूरी नहीं आपका एक्सपीरियंस हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा सीजीपीए कम है लेकिन मैं मतलब कॉम्पिटेंट हूँ और मतलब टैलेंटेड हूँ, तो क्या सीवी में मेरा सीजीपीए देखकर वो इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं? फिर लिखे ही नहीं अपनी जीपीए, सीजीपीए लिखे ही नहीं। देखिए मेरा भी सीजीपीए अच्छा नहीं था इतना, लेकिन मेरी बाकी एक्सपीरियंसेस बहुत जबरदस्त थे, तो मैंने जीपीए लिखना ही छोड़ दिया। बैचलर्स में मैंने अपना सीजीपीए लिखा ही नहीं था, मास्टर्स में अच्छा था तो मैंने लिख दिया। जो चीजें आपको लगता है अच्छी हैं, हाईलाइटेड है, वो लिखें, जो नहीं है उसको हटा दें। आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको शो करें। वीकनेस आप इंटरव्यू में आपसे जब, अच्छा एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जरूर पूछना है, आपकी वीकनेस क्या है, तो जरूर एक दो वीकनेस अपने दिमाग में सोच लीजिए। अपने दिमाग में हो सकता है आप ये सोचें कि आप बोल रहे हैं पढ़ाई में मैं उतनी एक्सट्रीमली अच्छी नहीं हूँ, बट आई कैन बैलेंस द अदर एक्टिविटीज वेरी वेल, सो दिस कुड बी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टुगेदर। तो डोंट मेंशन द थिंग्स व्हिच यू थिंक आर इररेलेवेंट। जैसे आपके सीजीपीए जरूरी नहीं है कि आप उसमें रेज्यूमे में लिखे, ज्यादातर रेज्यूमे में नहीं लिखा होता। थैंक यू सर।
और सर एक और क्वेश्चन है, आपने कहा था कि लिंक्डइन में आपको जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो लिंक्डइन में वो आपको अप्रोच करते हैं। सर ये मुझे समझ नहीं है कि अगर हम वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, लिंक्डइन एक फेसबुक टाइप का ही सोशल मीडिया है। उसमें जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क रिलेटेड चीज़ें ऐड कर सकते हैं। द आइडिया, जो कॉन्सेप्ट था लिंक्डइन का, वो था प्रोफेशनल नेटवर्किंग, कि आप अगर आज मुझसे मिल रही हैं तो आप मुझे लिंक्डइन में ऐड करेंगी तो आपको प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ रहा है। कल आप इन लिंक्डइन में लिखेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क है, दे विल हेल्प यू थ्रू दैट। उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एट एसपीके, उसमें सारी चीज़ें अपने लिस्ट डाउन की हैं, आपने एसपीके में किया क्या है। अपना समरी में लिख दें कि आई एम XYZ और मैं एसबीके की स्टूडेंट हूँ, आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट, आई एम लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज। तो जब आप वो लिंक्डइन लिखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्सपीरियंस के साथ फर्दर रिफाइन होता जाता है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम स्टूडेंट फ्रॉम BS इंग्लिश लिटरेचर। तो एज आपने कहा कि आपके जो एक्टिविटीज होनी चाहिए सीवी में वो रेलेवेंट सेक्शन के साथ होनी चाहिए। तो जो सेक्शन है अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट व्हाट विल बी द सेक्शन एंड रेलेवेंट सीक्वेंस ऑफ माय सीवी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और हर एरिया में हर टाइम पे जरूरी नहीं है आपकी फील्ड के हिसाब से सेक्शंस हो, इवन आपके एज और आपके वर्क के हिसाब से भी रेफरेंस है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि यू आर हियर, आपकी एजुकेशन है, फर्स्ट स्टेप फ्रॉम योर एजुकेशन वुड बी योर फर्स्ट जॉब। तो सबसे रेलेवेंट आपका एजुकेशन है। जब आप सेकंड जॉब पे, थर्ड जॉब पे जाएंगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, तब आपकी रेलेवेंस आपकी बाकी एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अभी आपका बहुत ही स्टैंडर्ड सा सीवी होगा जिसमें आपका पहले नाम आएगा, एक छोटा सा आई थिंक एक कॉलम बनाए जिसमें अपना ऑब्जेक्टिव या समरी लिख दें कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, व्हाट इज दैट यू एस्पायर टू डू, 2-3 लाइन का। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, फिर आपकी लीडरशिप या आपका जो रेलेवेंट चीजें। देखिए, लीडरशिप आ गई है, अब लीडरशिप में रेलेवेंट चीजें आप डालेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, कि यू लेड इंग्लिश लिटरेचर सेशंस इन योर क्लास, यू रेड अ स्टडी सर्कल आपने अपनी स्टूडेंट्स के साथ बुला लिया था जिसमें आपने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा। तो ये आपकी स्किल्स में आ जाती हैं, रेलेवेंट स्किल्स में, जब आप ऊपर लिखेंगे ये। सर क्या जो एक्टिविटीज है जैसे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशंस होते हैं या फिर कुछ ऐसा डिबेट वगैरह होता है वो भी सीवी में हम पुट कर सकते हैं? वेरी 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 रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तो जरूर इंक्लूड करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। I वालेकुम am सलाम। like in English department, so from the very start जो आपका session था that was very brilliant because we have learned a lot of things. Being from English department, we have to these elements to teach our students कि किस तरह से communication या CV कैसे बनाई जाती है। थैंक्स टू यू कि आपने वो तमाम चीज़ें बताई जो कि मेरे पैराफ्री में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इनको बताऊं अपने स्टूडेंट्स को, एज वेल मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट दैट नॉलेज बिकॉज सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी रेयर फॉर अस, क्योंकि आपने जितने भी एक्सपोजर्स की हैं वो आपने विद इन दीज 2 hours इतना उसको अच्छी तरह से मैनेज किया कि इट बिकम लाइक फ्रूटफुल हैंड फॉर अस। तो थैंक यू सो मच पर्सनली एंड फ्रॉम द साइड ऑफ आवर यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक क्वेश्चन भी आपसे है कि फॉर इंस्टेंस आप जो ये सीवी हम बनाते हैं, नंबर वन हाउ मच द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर जो प्रेजेंट करते हैं अपने सीवी को उनको लगता है कि जितनी आप मास्टिक लैंग्वेज यूज करते हैं लैंग्वेज वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू यूजिंग अ वेरी वर्निकुलर और कॉमन लैंग्वेज। तो एक सीवी में लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी है ये भी आप मुझे बता दें। इसके अलावा और ये भी कि हम इस लेवल पे जहाँ पे मैं इस वक्त यहाँ पे सर्व करी हूँ विद हैविंग मल्टीपल टास्क लाइक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हैविंग सम लेक्चर्स के तौर पे, तो क्या ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड करके I can bring a different dimension in my CV or just to serve it as a representation as commonly हम करते हैं अपने CV में। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें effective CV बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके अलावा एक ये भी था कि आपने कहा कि कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है इसका, बट स्टिल आप थोड़ा सा अगर बता दें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है जो एक इफेक्टिव चीज मेंशन कर सके, दिखा सके किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो ये आप मुझे 3 क्वेश्चंस अगर बहुत ब्रीफली करके बता दें, दैट वुड बी effective not only for me but for my students. And apart Thank from you. that, thank you again so much for productive session, and I hope that we are looking forward for different sessions as well. ऐसे और भी एक्टिविटीज अगर है आपकी या फिर रिलेटेड टू आवर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी के लिए, तो we are looking forward and we are very blessed if you will give us. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for your humble and kind comments. देखिए मेरे लिए भी ये बहुत एहसास की बात है कि मैं इकबाल हुसैन की किसी यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, कमिंग फ्रॉम द सेम प्रोविंस। ऑब्वियसली आप भी, जो भी बाहर जाता है वो हमेशा यही चाहता है कि यार जो हमारे लोग हैं एटलीस्ट, जो जिनको बिल्कुल इंटरनेट का मेरे सामने है, 10 बार इंटरनेट तो आपका गायब हो चुका है, तो इवन आई फील द सेम पेन एज वेल। तो आई एम प्रिविलेज्ड टू बी हियर, आई एम ऑनर्ड। पहला आपका क्वेश्चन था मैम, लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो जार्गन्स आपके मेंशन, मैंने शुरू में आपको कहा था जो मुश्किल लैंग्वेज है वो यूज ही ना करें, लेमैन को अंडरस्टैंड आपकी सीवी होनी चाहिए, उस हिसाब से लिखें। लेकिन आई ऑल्सो मेंशन इन द वेरी बिगिनिंग कि जब आप सीवी लिख रहे हैं, आप एविडेंस दे रहे हैं सीवी में कि मैं ये कर चुका हूँ, ये कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डिबेटिंग की बात की, कम्युनिकेशंस की, आई बैक्ड जो एग्जाम्पल थी वो डिबेटिंग की थी। फर्स्ट करें, आप कह रहे हैं कि आई एम एक्सपर्ट इन ग्रामर, और उसी लाइन में आपने फुल स्टॉप की जगह कॉमा डाल दिया। सो जाहिर सी बात है जो रिक्रूटर है वो कहेगा आप कहाँ के एक्सपर्ट हैं। इंग्लिश देखिए, लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना, फ्लुएंट इन इंग्लिश, that has to be fluent as well in your writing. आप बार बार अपनी सीवी चेक कराएं, अपने दोस्तों से चेक कराएं, अपने टीचर से चेक कराएं, मुझसे चेक कराएं, सर्कल की टीम से चेक कराएं कि यार मैंने ये सीवी लिखी है, ये आप देख लें इंग्लिश इसकी ठीक है या नहीं। क्योंकि हर किसी को लगता है कि जो मेरी राइटिंग है वो अमेजिंग है, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन when the second pair of eyes look at it, तब दिखता है कि यार खराबी कुछ जगहों पे एक लैक होती है। तो जब जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जैसे फ्लुएंट इन इंग्लिश लिखा हुआ है, मेक श्योर कि वाकई में आपकी इंग्लिश वो हो। तो जब पहले क्वेश्चन का आंसर है मुश्किल इंग्लिश ना लिखें, वेरी सिंपल इंग्लिश लिखें। सेकंड, जो आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फिलहाल हैं जो पोर्टफोलियो आप होल्ड करती हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, टीचर है, आई वुड से write all of them. Head of the department as your main portfolio. उसके नीचे subsections में लिख दें कि you're also representing, you're also a teacher in English literature, you're doing this. ठीक है, ताकि आपकी जो overall CV है वो reflect कर सके exactly आप कर क्या रही हैं। Head of the department तो हैं, उसके अलावा भी आपके पास कुछ काम है यहाँ पे, वो भी लिख दें। देखिए आप ये आप फलाही काम नहीं कर रही, you are being paid for it, this is your experience, you should cherish it, so you should also mention it in your CV। फलाही काम कर रही है वो भी अलग सेक्शन में नीचे आएगा। सो मेक श्योर सीवी रिफ्लेक्ट्स योर लाइफ जर्नीज, योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, सो डू ऐड देम एज वेल। जो आपका थर्ड क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने शुरू में कहा था नहीं है, इट गोज फ्रॉम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल। जैसे स्टूडेंट्स आपकी बैठी हुई हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि नेम, आपका पर्सनल प्रोफाइल, आपका ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है, कुछ लोग लिखते हैं कुछ लोग नहीं लिखते, इट्स गुड दैट इफ यू एड इट। ऑब्जेक्टिव के बाद आपकी एजुकेशन आती है, एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स। सेकंड आपका फिर उसके नीचे आ जाता है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपका स्किल्स, लैंग्वेजेस, फिर आपका फाइनल आपकी ट्रेनिंग्स आ जाती है, जो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो आज हो रही हैं। फॉर यू मैम, यू आर ऑन अ मच हायर लेवल, आपकी एजुकेशन नीचे आएगी, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फिर आपकी एजुकेशन आ जाती है बहुत नीचे करके। क्योंकि एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ योर करियर, मिड करियर लेवल या सीनियर करियर लेवल, एजुकेशन कम्स ऑल द वे डाउन, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आ जाती है। Your question? थैंक यू बिजंजू साहब, बड़ा अच्छा सेशन। थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आमिर साहिबा का शुक्रिया। और आपको पता है कि हम वी लिव इन नोशकी, और नोशकी कोयटा से 150 किलोमीटर के फासले पे है। सो इट इज ऑल ड्यू टू टेक्नोलॉजी वी आर कनेक्टेड विद यू, एंड वी होप कि इंशाल्लाह कल का सेशन भी हमें इंशाल्लाह अच्छा होगा। और जिस तरह हमारी फैकल्टी मिस गुलखंदा ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड
इस तरह के सेशंस हम आपके साथ करवाएंगे इंशाल्लाह। हम बहुत वी आर सो थैंकफुल कि आपने टाइम दी, आपकी टीम ने टाइम दी, और हमारे बच्चियां भी कुछ ना कुछ आज जरूर सीख के यहाँ से जाएंगे, अपने घर में डिस्कस कर लेंगे। और हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, दे आर अबाउट टू एंड देयर सेमेस्टर्स, सो ये बड़ा अच्छा हेल्पफुल होगा इनके लिए कि इस तरह का सेशन ऑनलाइन, और आप जैसे प्रोफेशनल जो आपका अपने प्रोफाइल देखा माशाल्लाह, तो इनके लिए बड़ा लर्निंग होगा। और वी विश यू गुड लक, आपके जो फ्यूचर जो एंडेवर्स है, एफर्ट्स हैं, अल्लाह पाक आपको आगे ले जाएं। और इंशाल्लाह वी होप कि एसबीके यूनिवर्सिटी कैंपस और आपके अदारे के साथ हमारे एक ताल्लुक रहे। तो इंशाल्लाह। on the behalf of all SBK University, we are so thankful to all of you. Thank you so much. Thank you so Thank you very much. much. Thank you very Thank much. you so much for Thank you. this Take care. informative and insightful session, Sikandar. It was a very pleasant contribution to our program, and I think you covered pretty much all the essentials on resume writing. उम्मीद है कि ऑडियंस ने भी इतना ही बेनिफिट किया होगा इस सेशन से जितना मैंने किया. I'd like to thank the university and the students and FNF, our sponsor, for taking our time and for being a great audience. बहुत शुक्रिया. एक फीडबैक फॉर्म का लिंक है, वो मैं चैट में अटैच कर रही हूँ, उस पर आप फीडबैक्स दे सकते हैं. चाहें तो इफ्तिखार साहब आप भी कलेक्ट कर सकते हैं फीडबैक और मुझे पर्सनली सेंड कर दें, मैं सिकंदर साहब से शेयर कर दूंगी. एक ये चैट ठीक हो गया? में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ये भी डायरेक्टली भी भरा जा सकता है. Thank you so much for the session, everyone. Thank you. So, Allah Hafiz. Good luck. Allah Hafiz. Allah Hafiz.